Who doesn't want to live a life which is full of achievements, full of milestones, full of success, full of action, full of value creation? Every one of us, without any exception, is always wanting to have a very good career. And it's my pleasure and privilege and honor to talk to these young minds and guide them with whatever little that I know about the career, having passed through it myself for now more than 36 years. Today's topic, as you have very rightly mentioned, is roadmap to become a successful professional. Roadmap to become a successful professional. Now, what we have covered so far? We started this series with power of subconscious and career in finance. And that is where we highlighted as to the Almighty has given to every one of us a wonderful tool, a wonderful power, and that is the power of subconscious. With the help of this tool, this subconscious, amazing results can be achieved in life. As second part, we spoke about career opportunities in finance. So I'm sure it must always be a question in the minds of all those who wish to do their MBA as to what actions, what functions they will handle once they join the industry. And therefore, on the second day of this series, we spoke about 36 different career opportunities which are available for the young MBAs specializing in finance. And it is really a rich ocean of opportunities for the benefit of the young MBAs. Then the last one that we had was on role of finance professionals in business. So we have really been going in a very logical and systematic manner, taking everything step by step. So last time we spoke about role of finance professional in business, and that is to understand कि भाई हम बिजनेस MBA करने के बाद जब हम बिजनेस ज्वाइन करेंगे, इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे, तो हमें क्या करना होगा. एंड ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना होगा, और ये जानना क्यों ज़रूरी है कि हमको क्या करना होगा. बिकॉज वैन वंस यू नो एज टू व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू, एक बार आपको ये ध्यान में आ जाए कि आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, आपसे बिजनेस की एक्सपेक्टेशन क्या है, इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप अपने आप को उस तरीके से और उस हिसाब से तैयार करने लगते हैं. और जब अपने आप को तैयार करने लगते हैं तो नेचुरली ये आपको एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देने में हेल्प करता है. सो दैट वाज द थर्ड सेशन दैट वी हैड ऑन रोल ऑफ फाइनेंस प्रोफेशनल्स इन बिजनेस. अब इसका लॉजिकल जो कंक्लूजन है वो यही है कि भाई ठीक है, अब नाउ द पॉइंट इज हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल फाइनेंस प्रोफेशनल. MBA किया और MBA में बहुत सारी नॉलेज ली, और ये भी ध्यान में आया कि भाई MBA करने के बाद इंडस्ट्री में क्या करना होगा. बट इज दैट इनफ? Is that enough? Or there is something else? And that is how today we have this session to understand as to what is that something else? What is that something extra that we need to understand, we need to imbibe, we need to pick up, we need to inculcate in ourselves as management aspirants, as aspirants to make career in finance, so that we are really able to achieve pinnacle of success in our life. And this is where we are today, discussing a roadmap for becoming a successful finance professional. So this is what the plan that we have. What is success and who is successful? तो naturally एक सवाल जो सबके मन में आता होगा वो ये कि सक्सेस है क्या, and who is successful. And I can tell you friends, success is something which has to be really understood very intricately. Why? Because success can be negative, success can be positive. So when I say success can be negative, what does it mean? It means there is a robber and there is a thief. He steps out of his house with an intention to commit theft somewhere, and he succeeds.
he succeeds. It is a success, but it is a negative success. It is a negative success, and we are not looking at the negative success. What we are looking at the positive success. And who is successful? Successful is someone, and this is the question which I'm sure must come to the minds of everyone, कि successful कौन है? And successful की अगर आप मुझसे definition पूछें तो मैं कहूँगा successful is a person who is able to do what he loves to do and what he likes to do. तो अगर आप वो कर सकते हैं, या वो कर पाते हैं, या वो कर पा रहे हैं जो कि आपको करना अच्छा लगता है, जो कि आपको करना पसंद है, और ऐसे काम से आपका भी फ़ायदा होता है और औरों का भी फ़ायदा होता है, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल. दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल. हु नाउ वी आर डिस्कसिंग, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल. सो वी अंडरस्टैंड सक्सेसफुल का मतलब क्या है. सक्सेसफुल का मतलब है टू बी एबल टू डू what you love and like, and what you do is not only good for you, but it is good for everyone else, and that is success and successful. We are discussing how to become a successful professional, and therefore we also need to understand what is the meaning of professional. And here please remember, professional does not mean anyone who is holding a professional qualification. Professional does not mean anyone who is holding a professional qualification. So merely becoming a doctor or an engineer or an architect or a company secretary or a chartered accountant or a cost accountant or a lawyer or an MBA, merely doing these courses does not make me a professional. Professional का मतलब क्या है? Professional का मतलब ये है कि someone who is following the ethics, someone who is setting an example, positive example, someone who is working for bringing smiles on the faces of others, someone who is making use of his profession for solving problem of others, and that is professional. So if I'm a doctor, and being a doctor, instead of helping people, cure them, if I'm only indulging in how to make more money through my patients, I'm a doctor, I'm not a professional. I'm not a professional doctor. And same is applicable to everybody. If I'm an MBA and with my knowledge and understanding, if I'm helping my company, if I'm helping all the stakeholders in my business create more value, if I'm helping the society with my knowledge and understanding in bringing smiles on their faces, if I'm helping them to resolve their problems, if I'm helping them in getting solutions, I'm being professional. But if I am doing the other way around, that means I am not being professional. And that is what, friends, all of you who are watching this program on all the social media platforms must remember. Professional का मतलब है कि आप business ethics को follow कर रहे हैं, ethics को follow करें, governance को follow करें, corporate governance को follow करें, value create करें, और आप जो भी करें वो ऐसा करें जिससे कि लोगों की जीवन आसान हो, जिससे कि लोगों को आसानी हो, लोगों की समस्याएं दूर हों, लोगों की प्रॉब्लम्स दूर हों, बजाय इसके कि आप लोगों के जीवन में प्रॉब्लम का कारण बने. And this is what, friends, I would like all of you to please make it as part of your permanent memory. Professional, as a professional, what is my biggest responsibility? As a professional, my biggest responsibility is that I should be able to help people resolve their problems. I should be able to help this world become a better place today than what it was yesterday. I should be able to help with my knowledge, understanding, experience and expertise. I should be able to bring smiles and cheers on the faces of others. If I am doing it, I am being professional. And if I am not doing it, that means I am not being professional. So if I have to become a successful finance professional, that means what? That means with my knowledge and understanding of finance, my experience and expertise of finance, I should be able to help the businesses create more value. I should be able to bring cheers and the smiles on the faces of everyone. Now the question is, what do we need to become? What do we need to do to become
अ सक्सेसफुल फाइनेंस प्रोफेशनल। तो अच्छी बात है कि ध्यान में आया कि भाई सक्सेस क्या है, सक्सेसफुल क्या है, प्रोफेशनल क्या है। गुड टू नो ऑल दिस, बट इज दैट इनफ? ऑफ कोर्स नॉट, दैट इज नॉट इनफ. We have to go one step further. And what do we need to do now? Now we need to understand as to what should we do to become a successful professional. Is that I can just become a successful professional without doing anything? And the answer, of course, is no. If I have to become a successful professional, if I have to become successful, if I have to become successful professional, I really need to do a lot of things. And what I need to do, that is what we will understand in today's session. What should we do to become a successful professional? That is also we will. So one is need. Please understand, ये जो लास्ट जो 2 पॉइंट्स आप देख रहे हो स्क्रीन पे, हो सकता है आप शायद थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले पॉइंट का मतलब है व्हाट डू वी नीड टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल, एंड द पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट इज व्हाट शुड वी डू टू बिकम अ सक्सेसफुल फाइनेंस प्रोफेशनल. दोनों में फ़र्क है. क्या फ़र्क है ये हम समझेंगे एज वी मूव फॉरवर्ड. So let us begin, friends, in today's session. I have already discussed with you as to what is success, who is successful, and who is a professional. So this is all clear to every one of us now. So what do we need to become a successful finance professional? सबसे पहला सवाल कि अगर मुझे मेरे जीवन में सक्सेसफुल फाइनेंस प्रोफेशनल बनना है तो उसके लिए मुझे किस चीज़ों की आवश्यकता है. And friends, I will highlight only 2 things. Point number 1 that we need to become a successful professional is the excellent subject matter knowledge. तो आप MBA in फाइनेंस हैं, फाइनेंस में करियर बनाने जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपकी फाइनेंस की नॉलेज एज अ सब्जेक्ट मस्ट बी पार एक्सीलेंस, must be absolutely par excellence. That means you should be able to answer any and every question, and I really mean it. You should be able to answer any and every question on finance. If not be able to answer is fine, but you should be able to find the answer. If you're not able to give the answer, you should be able to find the answer to any and every question in finance. इतना होनी चाहिए आपकी सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज स्ट्रॉन्ग. तो फाइनेंस की बात होती है तो आपकी पहली चीज़ जो आपको चाहिए, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए. सब्जेक्ट मैटर स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए क्या क्या करना है हमको, हम ये आगे देखेंगे. एंड नंबर 2, यू गॉट टू हैव एन ऑल राउंड पॉजिटिव पर्सनालिटी. So if you want to become a successful professional, if you want to become a successful finance professional, what you and I need, we need an all-round positive personality. And remember, the people who make this world a better place to live are the ones who are positively oriented. People who are negatively oriented, unfortunately, they don't make this place heaven, they make this place a hell. And unfortunately, there are some people who do it, but what we need to do as successful professional, we need to set example, we need to become leader in a manner that we are even able to transform such people also who are negatively oriented, turn them towards being a positively oriented person. So these are the 2 things, friends, that we need. These are the 2 things that we need to become a successful finance professional. अब हम क्या करेंगे, let us look at them one by one. कि subject matter की जब बात करते हैं तो what all. So subject matter knowledge में number 1, awareness about purpose of the business. And I'm sure all of you would remember it very distinctly. We have always highlighted this, that the purpose of a business is to create value. So if you and I have to become a successful finance professional, you and I got to constantly remember this purpose of a business, that is to create value. Why? Because ultimately, as a finance professional, what is my role? What is my responsibility? My role, my responsibility in the company where I would work is to help that company create more value so that this company can make more cash profit, and that is what we need to remember. So number 1, awareness about purpose of the business. और मैं friends आपको हो सकता है आप young हैं, you are still have to pursue your MBA program, and therefore some of these things might appear little complex, but I can tell you, जब आप इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे, जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि वाकई में
एक बिजनेस का पर्पस होता है टू क्रिएट वैल्यू। और अगर आपको ये इसकी जानकारी शुरू से हो जाए तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ उतनी आसान होती है, आपका करियर उतना ऊपर जाता है। सो नंबर 1 फॉर बीइंग गुड इन सब्जेक्ट मैटर नॉलेज is to be aware constantly as to what is the purpose of a business, and the purpose of a business is very simple. It is to create value. Number 2, knowledge about economy of the nation. Economy of the nation. अभी से जब आप when you are about to enter the management institute, when you are about to enter your MBA class, make it a point that you will always have a very good understanding, a very good knowledge about economy of the nation. Economy of the nation. And why do you need to have good understanding of economy of the nation? Because वो जो कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं वो इंडिया में काम करती है। वो जो कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं इट बिलोंग्स टू वन इंडस्ट्री, एंड देयरफॉर अगर आपको किसी मैदान में खेलना है, और आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो सचिन तेंदुलकर whenever he would come on the ground to play, to bat, you know what he would do? The moment he reaches on the crease, first thing what he does, he looks around. He looks around the whole ground and see as to who is where. So what he is trying to do? He is trying to assess and evaluate and become aware about the environment, about the situation. Same thing is applicable to all of you. Just make a note of it, that you and I have to have फैंटेस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी ऑफ द नेशन। और मैं आपको बताऊं, भूल से भी ये मत समझना कि इकोनॉमिक्स को समझना या इंडिया की इकोनॉमी को समझना बहुत मुश्किल काम है। बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है, और अगर आप वो समझ जाएंगे तो वाकई में आपको आपके जो भी आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बिजनेस में, कंपनी में, आपको उसको डिस्चार्ज करने में बहुत आसानी होगी। क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स का? फंडामेंटल प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स का ये है, इफ़ यू डोंट क्रिएट वैल्यू यू पैरिश। अगर आप कमाओगे नहीं तो आप भूखे मरोगे, एज सिंपल एज दैट। एंड देयरफॉर एज एन अ फाइनेंस प्रोफेशनल, दैट इज व्हाट यू मस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि अगर मेरी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसको जीडीपी बढ़ानी पड़ेगी, उसको इनकम जनरेट करनी पड़ेगी, जीडीपी जनरेट करनी पड़ेगी। अगर मेरी कंपनी को ग्रो करना है उसी तरह से मेरी कंपनी को भी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, वैल्यू क्रिएशन बढ़ाना पड़ेगा, कैश प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। एंड रिमेंबर, सेम थिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू मी एज एन इंडिविजुअल। सो व्हाट इज एप्लीकेबल टू ए कंपनी इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एन इकोनॉमी, इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल। एंड what it is the fundamental principle of economics. If you don't earn, you perish. अगर आप कमाओगे नहीं तो आप you will become insolvent, you will become bankrupt. तो इकोनॉमी के बारे में समझ के लीजिए कि फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इकोनॉमी में गवर्नमेंट का क्या रोल है, इकोनॉमी में कॉरपोरेट सेक्टर का क्या रोल है, इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का क्या रोल है, इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या रोल है, और ये रोल किस तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब when the good days are good, when the economy is, when the whole country is passing through a good phase, then what happens? Then the corporates will support the government with more revenues. And you must have also noticed during the COVID time what happened? It was the other way around. Economy was not doing well. So this time, instead of the corporate supporting the government with more revenue, it was the government that was supporting the corporate with stimulus packages. And that is what you need to understand. That is what you need to understand as to what is the function, how does the economy of the country functions, and what is the role of different players. इससे आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत सहूलियत मिलेगी, इससे आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत सहूलियत मिलेगी, और आपके जो डिसीजन होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने करियर को एक मैनेजर की तरह मत देखिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप अपने करियर को एक लीडर की तरह देखिए, एंड एज ए लीडर यू विल हैव टू टेक लॉट ऑफ डिसीजंस। सो दैट इज नंबर 1, इकोनॉमी के बारे में नॉलेज अपनी साउंड रखें। उसके बाद नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री ऑफ योर कंपनी। थर्ड थिंग दैट सब्जेक्ट मैटर नॉलेज एंड इज दैट इज नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री ऑफ योर कंपनी। तो हो सकता है कि आप FMCG, आप जब 2 साल के बाद MBA करके निकलेंगे तो हो सकता है कि आपको एक FMCG में काम करने को मिले,
या एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में काम करने को मिले, या एक फार्मा कंपनी में काम करने को मिले, या एक टेलीकॉम कंपनी में काम करने को मिले, या एक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में काम करने को मिले, या एक बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करने को मिले। सो ऑब्वियसली जब आप एमबीए करके निकलेंगे तो आप एक कंपनी को ज्वाइन करेंगे और वो कंपनी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बिलोंग करेगी। एंड आप समझ सकते हैं कि आपकी इस इंडस्ट्री की नॉलेज भी बहुत साउंड होनी चाहिए। इस इंडस्ट्री की भी नॉलेज बहुत साउंड होनी चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है इस इंडस्ट्री का, उसका क्या एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन, वो उस प्रोडक्ट से किस किस को क्या क्या फ़ायदा होता है, इस इंडस्ट्री में कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी कि आपके कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, इस इंडस्ट्री की टोटल डिमांड कितनी है आज की तारीख में, इस इंडस्ट्री की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है आज की तारीख में, इस इंडस्ट्री में इंपोर्ट्स का क्या पोजीशन है, इस इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट्स क्या 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 पोजीशन है, इस इंडस्ट्री की फ्यूचर डिमांड की क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ये सारे और इस तरह के सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मालूम करना पड़ेगा। और अगर आप, और देखिए बहुत आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, luckily you are born in the times which are the best times as far as the knowledge is concerned, because everything is available on the click of a mouse। एक माउस का बटन दबाया और आपको सारी जानकारी मिल जाती है। तो वो सारी इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी आपको रखनी है, क्योंकि उस जानकारी के बेसिस पर आपका जो फाइनेंस का जो करियर है वो बिल्ड होगा। देखिए याद रखिए, आप इंडस्ट्री में काम करेंगे, इंडस्ट्री में जब आप काम करेंगे तो आप शायद ये चीज़ को ना नोट कर पाएँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एवरीबडी हु इज़ वर्किंग अराउंड यू इज़ कॉन्स्टेंटली इवेल्युएटिंग यू। वो हमेशा आपको असेस करते रहते हैं कि ये बंदा कैसा है, इसका एटीट्यूड कैसा है, इसकी अप्रोच कैसी है, ये कितना मेहनती है, ये कितना सिंसियर है, ये कितना डेडिकेटेड है। तो सारे लोग आपके आसपास के ये आपको कॉन्स्टेंटली असेस करते रहते हैं। सो बी अवेयर। एंड जितना आप इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज दिखाएंगे, जितना आप इकोनॉमी के बारे में नॉलेज सबके साथ में शेयर करेंगे, ऑब्वियसली आप उतनी पॉजिटिव इमेज अपने बारे में डेवलप करेंगे, और जितनी आप अपने बारे में पॉजिटिव इमेज डेवलप करेंगे आपको उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 4, नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर कंपनी। तो जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये कंपनी किस ग्रुप को बिलोंग करती है, इस कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं, इस कंपनी का टर्नओवर कितना है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, इस कंपनी के एक्सपोर्ट्स कितने हैं, इंपोर्ट्स कितने हैं, इस कंपनी का रॉ मटेरियल क्या 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 है, इस कंपनी को रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं, इस कंपनी के कस्टमर कौन कौन से हैं, इस कंपनी की फाइनेंसिंग कैसे हुई है, इस कंपनी का लिस्टिंग है तो मार्केट में इसकी क्या प्राइस चल रही है, इसके प्रमोटर कौन है, मैनेजमेंट कौन है, एम्प्लॉयज़ कौन है, प्लांट कितने हैं, कहाँ कहाँ पर ऑपरेशन है, वो सारा आपको अपनी कंपनी के बारे में भी जानना होगा। प्लीज़ रिमेंबर, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। एंड व्हाट इज योर सब्जेक्ट? योर जॉब इज योर सब्जेक्ट, योर कंपनी दैट यू आर वर्किंग फॉर इज योर सब्जेक्ट, एंड देयरफॉर you obviously have to have phenomenal understanding and knowledge about the company as well। and उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको लोगों से मिलना है, लोगों से बात करनी है, लोगों से पूछना है, और पढ़ाई करनी है, रीडिंग करनी है, सुनना है। तो ये जब आप करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी नॉलेज अबाउट द कंपनी विल ऑल्सो इम्प्रूव। देन नंबर 5, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। याद रखिए, you intend, you plan, or you have already chosen to make your career in finance. You have already chosen to become a successful finance professional, and therefore remember, the understanding of financial statements and the process of financial reporting is very crucial, is very critical, and it has to be understood very very clearly। तो आपको जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है, उसके बारे में बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और उसके बारे में आपको बताऊं कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉन नाउ ग्लोबली, देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉन एज IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। उसको इंडिया में उसको नया नाम दिया है, और इंडिया में उसको बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपको ये जो रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। और देखिए, जितना आप जल्दी शुरू में जितना आप अपने आप को ये फील्ड में मजबूत कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, यानी कि ये 2 साल जो आपको मिल रहे हैं 2 MBA के, ये 2 साल आपको ये समझ के लीजिए कि ये 2 साल आपकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा कीमती साल हैं।
और ये क्यों सबसे ज़्यादा कीमती साल हैं? ये सबसे ज़्यादा कीमती साल इसीलिए हैं क्योंकि ये 2 सालों में जो आप करोगे उस पर डिपेंड करेगा कि आप बाकी ज़िंदगी क्या करोगे। एंड देयरफॉर व्हाट यू हैव टू डू, ये 2 सालों में अपने आप को पूरी तरह से खपा देना है, अपने आप को पूरी तरह से लगा देना है। और क्या करना है? अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करना है कि 39 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके क्या प्रोविजंस हैं, समझ के लीजिए। थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो एक्स्ट्रा मेहनत आपको उतने बड़े बड़े मोती ला के देगी, ठीक है ना। जितना आप नीचे जाएंगे समुद्र में उतने बड़े मोती मिलते हैं। उसी तरह से आपको जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, एनहेंस करेंगे अपनी, उतने ज़्यादा आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उतने ज़्यादा आपको अवार्ड्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नंबर 6, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड बिजनेस एनालिसिस। ऑब्वियसली आप फाइनेंस के एमबीए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। ये बहुत सारे ये चीज़ें मैं आपको अभी जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि जब आप एमबीए का प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो आप धीरे धीरे करके समझ जाएंगे। लेकिन आप में से कुछ लोग जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं उनको इसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ ये क्लियर कर दूँ कि जस्ट बिकॉज मैंने कहा कि आप में से जो कॉमर्स के लोग हैं, इसका मतलब भूल से ये मत सोचना कि कॉमर्स के लोगों को कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज है। ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली एट पार, जैसा कि मैंने पहले भी एक सेशन में मेंशन किया है। लेकिन फाइनेंशियल एनालिसिस आपको मालूम होना चाहिए, बिजनेस एनालिसिस आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है, कौन सी इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, कौन से प्रोडक्ट के अच्छा होने की पॉसिबिलिटी है, कौन सी इंडस्ट्री के अच्छा करने की पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड करनी पड़ेगी ड्यूरिंग दीज 2 years when you are doing your MBA, and after that of course continuously. Point number 7, all aspects of efficient financial management of business. आप फाइनेंस के प्रोफेशनल हैं तो ऑब्वियसली फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसकी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है और कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है और कैसे करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है और कैसे करते हैं, कैपिटल रेजिंग क्या है और कैसे करते हैं। तो जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग सॉलिड होनी चाहिए। यानी कि वर्किंग कैपिटल हो, प्रोजेक्ट फाइनेंस हो, फंड रेजिंग हो, और भी अलग अलग तरह के जो डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं बिजनेस में, उसके बारे में आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा टू बिकम अ सक्सेसफुल फाइनेंस प्रोफेशनल। नंबर 8, आपकी कैपिटल मार्केट की नॉलेज और आपकी मनी मार्केट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। कैपिटल मार्केट यानी कि जहाँ से लॉन्ग टर्म सोर्सेज को रेज किया जाता है, मनी मार्केट जहाँ से कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज को रेज किया जाता है। तो कैपिटल मार्केट में कौन कौन प्लेयर हैं, उनका क्या रोल है, और कैपिटल मार्केट का फ़ायदा कंपनी कैसे ले सकती है। मनी मार्केट में कौन कौन प्लेयर हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि किन किन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फंड्स रेज किए जाते हैं। कैपिटल मार्केट में किस किस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फंड्स रेज किए जाते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स के क्या प्रोज हैं, क्या कौन से हैं, किस कंपनी को किस सिचुएशन में कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए। ये सारी आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर की अच्छी होनी चाहिए। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। रिस्क मैनेजमेंट एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक सेशन में कहा था कि वैल्यू क्रिएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट आर 2 sides of the same coin. Value creation and risk management are 2 sides of the same coin, that is business. And as finance professional, you will have to really work very hard on the risk management of your company. You will have to really work very hard on the risk management of your company and also on the फॉरेक्स मार्केट, बिकॉज ये आज की तारीख में पूरी दुनिया में जिस तरह से बिजनेसेस हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली ग्लोबल ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं, इंपोर्ट बहुत होते हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत होते हैं। उसके अलावा कैपिटल का इनफ्लो आउटफ्लो होता है। इंडिया से कैपिटल बाहर जाती है, बाहर से कैपिटल इंडिया आती है। तो फॉरेक्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो फॉरेक्स करेंसी का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसको कैसे मार्केट ऑपरेट होता है, वो आपको समझना होगा। और अगर आप वो समझेंगे तो आप अपनी कंपनी को गाइड कर पाएंगे, आप अपनी कंपनी को एडवाइस कर पाएंगे, आप कंपनी को हेल्प कर पाएंगे इन अचीविंग द रिस्क मैनेजमेंट, एंड दैट्स अगेन पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। पॉइंट नंबर 10, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग and business valuation. So I'm sure all of you must be reading Economic Times, Financial Express, DNA, or Business Standard, or you must be reading different business magazines like Business Today or Business India or Business World, or so many of them. तो आपको ध्यान में आएगा कि टुडे इट हैज़ बिकम सो कॉमन
to have the corporate restructuring happening, right? So sometimes and corporate restructuring, so merger है, amalgamation है, takeover है, acquisition है, slump sale है, बहुत सारे स्पिन ऑफ है, बहुत सारी फॉर्म्स हैं मर्जर्स एंड अमलगमेशन की। तो वो आपको समझना होगा कि वो सारे जो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के, वो कैसे काम करते हैं और उनका किसी किसी भी मोड का क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज है और क्या उसके बेनिफिट हैं, तो वो आपको समझ के लेना होगा। और फिर बिजनेस वैल्यूएशन, सीधी सी बात है, आप समझ सकते हैं कि जब आप कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे या फिर आप पेपर में देखते हैं कि somebody has bought some company, as I was telling you previously, that Ruchi Soya, which used to be a company, now it has been purchased by Patanjali. So पतंजलि ने रुचि सोया एक कंपनी को खरीदा, तो वो रुचि सोया की प्राइस पतंजलि ने कैसे डिसाइड करी होगी, दैट इज नॉन एज वैल्यूएशन। या फिर एसआर स्टील is taken over by or has been bought over by ArcelorMittal Nippon Steel. So उन्होंने किस तरह से एसआर स्टील की प्राइस को डिसाइड किया होगा, बिकॉज एसआर स्टील कोई लैपटॉप तो है नहीं, या कार तो है नहीं, या फ्रिज तो है नहीं कि और टीवी तो है नहीं कि उसकी एमआरपी होगी। एसआर स्टील इज अ कंपनी, was a company with huge capacity of producing steel, उसके अलग अलग plants division। तो how do you do those valuation? So as part of your subject matter knowledge, you will have to have a good understanding of business valuations also. And as I was telling you, and please remember, these 2 years extremely precious, extremely precious। ये 2 साल मैं आपको बोलता हूँ, and I'm telling you based on my experience of life, ये 2 साल आपके जीवन के, जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत ही कीमती हैं, बहुत ही कीमती हैं। और आपको क्या करना है, आपको ये 2 सालों का पूरा इस्तेमाल करना है अपनी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज को एकदम टॉप पे ले जाने के लिए। एकदम टॉप पे ले जाने के लिए आपकी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि एवरीबडी अराउंड यू, आपके पास में जो भी लोग हैं, उनको कोई भी डाउट आए किसी सब्जेक्ट के ऊपर, दे मस्ट कम एंड आस्क यू कि भाई आप बताओ हमको ये कैसे करेंगे। सो दैट इज व्हाट इज इट। एंड द लास्ट पॉइंट on the subject matter knowledge is the global business understanding. Please remember, हम लोग अभी ग्लोबल एटमॉस्फेयर में हैं, तो हमें इकोनॉमी की नॉलेज होना सफिशिएंट नहीं है, इंडस्ट्री की नॉलेज होना सफिशिएंट नहीं है, कंपनी की नॉलेज होना सफिशिएंट नहीं है। अगर मुझे और आपको अगर एक सक्सेसफुल फाइनेंस प्रोफेशनल बनना है, तो हमारी ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। How American markets are doing, how European markets are doing, how Japanese economy is doing, how Chinese economy is doing, you know, all the economies of the globe, how are they doing, right? And what are the impacts of their functioning on India or India's functioning on the economy of those countries? क्योंकि आप मान के चलिए कि अब जिस कंपनी में आप काम करेंगे, वो कंपनी 100% I can tell you is going to be a company that will be a multi-location, multi-geography company. So आपको अपनी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग भी तैयार स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और ये सब आप कैसे करोगे, फिर से बता दूं एक बार, इसके लिए आपको बहुत रीडिंग करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, राइट। और जब ये करेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज बहुत सॉलिड हो जाएगी। नाउ लेट अस गो टू द पॉइंट नंबर 2। तो हमने देखा कि व्हाट डू वी नीड टू बिकम अ सक्सेसफुल फाइनेंस प्रोफेशनल। नंबर 1, वी नीड टू हैव अ गुड सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, एंड नंबर 2, व्हाट वी नीड an all-round positive personality. Okay, now let us understand कि all-round positive personality का मतलब क्या है। और फिर से रिपीट कर दूं कि अगर मुझे और आपको सक्सेसफुल फाइनेंस प्रोफेशनल बनना है, तो यार एक बात पक्की मान के चलिए कि आपका और मेरा जो एटीट्यूड है, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली 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 पॉजिटिव। देयर इज नो स्कोप इन सक्सेस फॉर नेगेटिविटी, सो पॉजिटिव। तो अब अगर मुझे और आपको ऑलराउंड पर्सनालिटी रखनी है, तो क्या होगा, सबसे पहले पैशनेट। सो यू एंड आई हैज गॉट टू बी पैशनेट अबाउट आवर वर्क। हमारा जो काम है उसके प्रति हमें वी हैव टू बी पैशनेट। और पैशनेट का मतलब क्या है, पैशनेट का मतलब ये है कि जब आप पूरी तरह से थक जाओ, जब आप पूरी तरह से थक जाओ और थकने के बाद भी जब आप काम करते हो, उससे मालूम पड़ता है कि यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, अबाउट योर जॉब। अगर आपको मीडियोकर परफॉर्मेंस देना है लाइफ में, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत काम करो, बाकी सब अपने आप हो जाता है। लेकिन अगर आपको
एक नॉन, एक प्रोमिनेंट, एक एमिनेंट, एक एस्टेब्लिश्ड एंड एक एग्जाम्पलरी प्रोफेशनल बनना है, बी पैशनेट अबाउट योर वर्क. सो वर्क even when you are tired, and that is what is you got to be, you and I got to be passionate. Commitment, our commitment has to be very very strong. And what is the meaning of commitment? Let me explain this with the help of an example. Let's say, and this is just an example, let's say बिल गेट्स मियामी बीच पर अपनी फैमिली के साथ वैकेशन पे आए हैं, और उनके साथ में उनका ग्रैंड चाइल्ड जो कि सिर्फ 5 साल का है वो भी बीच पर है. सडनली बिल गेट्स ने देखा कि उनका जो 5 साल का ग्रैंडसन है वो समुद्र के अंदर चला गया. आपको क्या लगता है, जब बिल गेट्स देखेंगे कि उनका ग्रैंडसन पानी के अंदर, समुद्र के अंदर चला गया है, तो आपको क्या लगता है वो फ़ोन उठाएंगे और अपने कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बोलेंगे कि माई ग्रैंडसन इज ड्राउनिंग, प्लीज सेंड समबडी? और ही विल टॉक टू द मेयर ऑफ मियामी and ask him that my grandson is drowning, please send somebody? Or he will speak to his secretary and ask her or him to send somebody to know? What will Bill Gates do? Bill Gates will not think anything. What he will do, he will just not care of anything and rush to save his grandchild from drowning. And that is what is commitment. तो अगर मुझे और आपको हाईली सक्सेसफुल फाइनेंस प्रोफेशनल बनना है तो मेरा और आपका कमिटमेंट कैसा होना चाहिए? मेरा और आपका कमिटमेंट ऐसा होना चाहिए जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा. यू जस्ट कैन नॉट लीव फॉर समवन एल्स टू हैंडल व्हेन देयर इज अ क्राइसिस. व्हेन देयर इज अ क्राइसिस यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, एंड दैट इज कमिटमेंट. नंबर 3, एटीट्यूड ऑफ गिविंग. Attitude of giving is the third quality that is part of positive personality. A positive, you can see whether it's Bill Gates or Dhirubhai Ambani or Ghanshyam Das Birla or Warren Buffett or Azim Premji or Narayan Murthy, so many of them all over the world, the true businessmen, what are they working for? Ratan Tata, what are they working for? Are they working for accumulating wealth for themselves? Are they working to increase their bank balances? Of course not. What is driving them? What are they working for? They are working for because they want to make this world a better place to live. They want to work because they want to bring smiles and cheers on the faces of others. They are doing it because they want to be a giver. So they have an attitude of giving. Effective communicator. And please remember, कम्युनिकेशन का, गुड कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है. गुड कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं कि आप भाषण कितना अच्छा देते हो. गुड कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं कि आप प्रेजेंटेशन कितने अच्छे देते हो. गुड कम्युनिकेशन स्किल का एक ही मतलब है कि आप अपनी बात को कहते हो तो आप अपनी बात को सामने वाले के दिल तक कैसे पहुंचाते हो. एंड दैट इज गुड इफेक्टिव कम्युनिकेटर. एज ए finance professional, you and I have to be good, effective communicator. High emotional intelligence, and just be aware of it. Emotional intelligence, agar I'm sure by now all of you must have heard about it or must have read about it, या कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में सुना होगा या जाना होगा. इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ, ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है आज की तारीख में कि दुनिया में जो लोग कामयाब हुए हैं कहीं पर भी, उनकी कामयाबी के पीछे IQ उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि EQ था. यानी कि उनका इंटेलिजेंस कोशिएंट वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट एज मच एज द EQ वाज. एंड व्हाट इज EQ? EQ इज टू हैंडल योर इमोशंस इन ए पॉजिटिव मैनर. Handle your emotions in a positive manner. Not only handle your emotions in a positive manner, but also handle the emotions of everybody else also in a positive manner. Have good understanding of NLP, Neuro-Linguistic Programming. तो अभी देखिए हमने बात करी सबकॉन्शियस माइंड की. जब हमने बात करी सबकॉन्शियस माइंड की और जब हमने वो एग्जाम्पल देखा कि मैंने आपसे कहा कि मैंने डिसाइड किया कि जिस इंग्लिश की वजह से
मैं इतना डर रहा हूँ कि मैं बाहर छोड़ मतलब कॉलेज छोड़ के जाने की सोच रहा हूँ। एक दिन उसी इंग्लिश में सबको मैनेजमेंट टीच करूँगा, मैनेजमेंट में जाके सिखाऊंगा उसी इंग्लिश में। तो व्हाट वाज दैट? दैट इज एनएलपी। सबकॉन्शियस इज व्हाट? एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आपको सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना है, एमबीए बनना है, just write it down on a piece of paper, read it every day and remember that is neuro linguistic programming. तो जब आप कोई मैसेज अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, जब आप कोई मैसेज बार बार रिपीट करके देते हो, दिस इज कॉल्ड एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब माइंड, लिंग्विस्टिक मीनिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग यू अंडरस्टैंड। सो एनएलपी का मतलब यह है कि किस तरह से अपने माइंड को रीप्रोग्राम करें, किस तरह से अपने माइंड को प्रोग्राम करें टू अचीव समथिंग दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। सो हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनएलपी। एंड इतना ही है फ्रेंड्स। सब कॉन्शियस अगर आपने समझ लिया, सब कॉन्शियस की पावर आपने समझ ली, तो ये समझ लिया कि आपने समझ लिया कि एनएलपी क्या है। बस आपको उसको यूज करना चालू करना है। बी हाईली सेल्फ मोटिवेटेड, बी हाईली सेल्फ मोटिवेटेड एंड रिमेंबर, अगर आपको मीडियोकर परफॉर्मेंस देना है तो आप लोगों के पास में जाइए और उनके द्वारा मोटिवेट होइए। लेकिन अगर आपको पार एक्सीलेंस परफॉर्मेंस देना है, अगर आपको दुनिया में अपना नाम क्रिएट करना है, देन यू गॉट टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। एंड सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब क्या है? सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब ये है, डोंट वेट फॉर अदर्स टू टेल यू टू डू इट। Do it because you want to do it. Do it because you like to do it. Do it because you have decided to do it. Don't wait for others to tell you. Do it because you want to do it. Be self-motivated if you and I have to be a successful, highly successful business finance professional. Positive attitude. एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या मतलब है। ये मेरे बचपन की बात है। मेरे गांव में एक बड़े सेठ थे, बहुत पैसे वाले थे, और उन्होंने एक बड़ा सुंदर नया घर बनाया। और इतना बढ़िया घर कि पूरे गांव के लोग देखते थे, क्या घर बना है। दुर्भाग्य से वो घर एक दिन कोलैप्स हो गया। वो घर टूट के गिर पड़ा। तो नेचुरली गांव के लोगों को दुख हुआ और गांव के लोग उनको सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचे। और घर पहुंचे तो सांत्वना देने से पहले ये जो सज्जन थे, ये अपने हाथ में मिठाई का डब्बा लेके जो भी उनके सामने आ रहा था उसको मिठाई का डब्बा दे रहे थे, मिठाई दे रहे थे अपने। तो लोगों को लगा कि सेठ जी को बहुत सदमा पहुंचा है घर गिरने का। लगता है इनका दिमाग का बैलेंस बिगड़ गया है कि इनका घर पूरा टूट गया है और ये लोगों में मिठाई बांट रहे हैं। तो किसी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि सर ये आप क्या कर रहे हैं? आपका घर टूटा है और आप ये मिठाई बांट रहे हैं। बोले हाँ मैं मिठाई बांट रहा हूँ। पर लेकिन क्यों? तो सेठ जी ने कहा देखो, आज से 7 दिन के बाद मैं ये घर में अपने पूरे परिवार के साथ शिफ्ट करने वाला था। मेरा पूरा घर, पूरा परिवार ये घर में शिफ्ट होने वाला था। अगर ये घर आज से 7 दिन के बाद गिरता तो मेरा पूरा परिवार इसमें दफन हो जाता। मैं मिठाई इसलिए बांट रहा हूँ कि परमेश्वर की कृपा है कि उसने ये काम 7 दिन पहले कर दिया और मेरा परिवार बच गया। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। सिचुएशन लाइफ में कभी भी एक जैसी नहीं होती हैं। समय कभी भी एक जैसा नहीं होता है। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, लेकिन आदमी अपना एटीट्यूड हमेशा एक जैसा रख सकता है, एंड वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। बी ए गुड थिंकर, फोरसाइट एंड फारसाइट। एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल, आपकी कंपनी का भविष्य बहुत कुछ आपके हाथों में है। बिकॉज फाइनेंस इज द लाइफलाइन ऑफ अ बिजनेस, इजंट इट? वी ऑल अंडरस्टैंड इट। हम सबको मालूम है फाइनेंस is lifeline of a business, and therefore to a very large extent life of the business is in your hands as a finance person, and therefore you, भगवान ने हमको एक बहुत बड़ी ताकत दी है। भगवान ने आपको और मुझे एक बहुत बड़ी पावर दी है। और जानते हैं वो पावर क्या है? वो पावर है पावर टू थिंक। मेक यूज ऑफ योर थिंकिंग पावर, मेक यूज ऑफ थिंकिंग पावर, मेक इट अ प्रैक्टिस, मेक इट अ हैबिट टू थिंक and be a farsighted and have a foresight. And that's your point number 9, good thinker. Conviction,
Point number 10, conviction. Conviction about whatever you think and whatever you do. तो जो भी आप करें, जो भी आप सोचें, उसके बारे में करने से पहले, सोचने से पहले आपका 100% कन्विक्शन होना चाहिए। यानी कि आपको पक्का मालूम होना चाहिए कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, वो एकदम सही है, और आप जो भी करेंगे और जो भी सोचेंगे वो एकदम सही होगा। सो बी स्ट्रांगली कन्विक्टेड about whatever you want to do and whatever you want to achieve. Inquisitive, learning continuously. Inquisitive का मतलब है you must be always interested to know more and more and more and more. You should always be prepared to learn more, and because then only you will be able to increase your knowledge. So continuously keep on enhancing your knowledge. Be a leader, and please remember who is a leader. Leader वो नहीं है जिसके फोटो अखबार में छपते हैं। लीडर वो नहीं है जो टीवी पे आता है रोजाना। लीडर कौन है? लीडर वो है, वह करता है जो कि उसको करना चाहिए। सो लीडर इज अ पर्सन हु डज what he is supposed to be doing. So what is leadership? Leadership is doing what you are supposed to be doing is leadership. यानी कि जो काम आपको करना चाहिए, अगर आप वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक लीडर हैं, otherwise not. And this is simple definition of a leader. So as a citizen of this country, as a human being, what are we supposed to be doing? We are supposed to be helping this world become a better place to live. So in whichever way, small or big, if we are contributing in this world becoming a better place to live, that means you and I are becoming leader. और मैं आपको बताऊं कि छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ हिस्ट्री से। शिवाजी वॉज अ ग्रेट लीडर, बट डू यू नो शिवाजीज मदर जीजा माता वॉज ऑल्सो अ ग्रेट लीडर। शिवाजीज मदर जीजा माता वॉज ऑल्सो ग्रेट लीडर। एंड वाई जीजा माता वॉज अ ग्रेट लीडर? बिकॉज जीजा माता ने तो कोई युद्ध लड़ा नहीं, जीजा माता के पास तो कोई फौज नहीं थी। पर क्यों जीजा माता वॉज अ ग्रेट लीडर? जीजा माता वॉज अ ग्रेट लीडर बिकॉज शिवाजी वॉज अ लीडर, बिकॉज शिवाजी ने वो किया जो उनको करना चाहिए था। और जीजा माता ने वॉज अ लीडर, जीजा माता वॉज अ लीडर बिकॉज उन्होंने वो किया जो उन्होंने करना चाहिए था। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने शिवाजी में संस्कार डाले। किस चीज़ के संस्कार डाले? एक वीर योद्धा होने के संस्कार डाले, एक न्याय प्रिय योद्धा होने के संस्कार डाले। सो जीजा माता ने वो किया जो उनको करना चाहिए था, शिवाजी ने वो किया जो उनको करना चाहिए था, दोनों ने वो किया जो उनको करना चाहिए था। एंड दैट इज वाई बोथ ऑफ देम वर लीडर। सो बी अ लीडर, डू व्हाट यू आर सपोज टू बी डूइंग। जो काम आपको करना चाहिए आप वो करिए, एंड यू आर अ लीडर। टोटल अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका जो मिशन है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो गोल है, उसका जो विजन है, you have to ensure that you completely align your thought process, your goals, your objective with the goals and objective of the organization. And finally, friends, business ethics and good corporate governance. Business ethics and good corporate governance. That is what you are supposed to be following as a professional, as a good professional. Finance or others doesn't really matter. As any professional, following the ethics, following good corporate governance is responsibility of everyone. And let me give you a small example on what is business ethics. एक दिन चाणक्य के पास में शाम के समय कुछ लोग मिलने के लिए आए। चाणक्य उस समय कुछ काम कर रहे थे, अंधेरा था, एक दीपक जल रहा था और वो दीपक की रोशनी में अपना काम करने में लगे हुए थे। जब ये लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो चाणक्य ने उनसे बैठने के लिए कहा। वो 8-10 लोग थे, वो बाहर बैठ गए, चाणक्य के फ्री होने का इंतजार करने लगे। कुछ समय के बाद चाणक्य ने अपना काम खत्म किया और जो पेपर जो लिख रहे थे उन्होंने बाजू में रखा। उन 8-10 लोगों को अंदर बुलाया, अंदर बुला के बिठाया और फिर चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने एक पास में दूसरा जो दीपक रखा था जो कि बुझा हुआ था उसको जलाया और पहला जो दीपक जो जला हुआ था उसको बुझाया
और फिर उन्होंने 10 वो जो लोग आए थे मिलने के लिए उनसे कहा कि बताइए मैं आपको किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तो जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हम जिस काम के लिए आए हैं वो तो हमको बाद में बताएं, हम आपको बाद में बताएंगे, पर हमारे दिमाग हमारे मन हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई कि आपने एक दीपक को जलाया और फिर दूसरे दीपक एक दीपक को जलाया फिर पहले वाले को बुझाया। ये आपने ऐसा क्यों किया? पहले वाला जल रहा था तो उसको जलने देते थे, दूसरे वाले को जलाने की क्या जरूरत थी? चाणक्य ने कहा, देखिए, आपके आने से पहले मैं सरकारी काम कर रहा था, सरकार का काम कर रहा था, और उस वो सरकार के काम के लिए मुझे सरकार से भत्ता मिलता है, तेल का भत्ता मिलता है। तो वो जो तेल जल रहा था मेरे दीपक में वो सरकार के पैसे से आया हुआ था। और अब जब आप मुझसे मिलने के लिए आए हो तो आप मुझसे व्यक्तिगत काम के लिए आए हो, और चूंकि आप व्यक्तिगत काम के लिए मुझसे मिलने के लिए आए हो तो फिर मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि मैं सरकार का तेल न यूज़ करके उस तेल का इस्तेमाल करूं जो कि मेरे खुद के पैसे से खरीदा हुआ है। दिस इज फ्रेंड्स कॉल बिजनेस एथिक्स। एंड इफ यू एंड आई हैव टू बिकम a successful finance professional, then you and I will need to remember कि चाणक्य ने क्या किया। You and I will have to do the same thing. Not only you and I will have to do the same thing as Chanakya did, but we should also become an example for others to follow. And that is what is leadership. And now friends, so we've discussed what do we need to become a successful professional. Now we will discuss what should we do to become a successful finance professional. Number one, be aware of purpose of your life, and remember what is purpose of your life, what is purpose of my life. Purpose of life of everyone on this earth is same, and that is to make this world a better place to live. Always remember this. Always remember this. Number two, be aware of your goal in life. आपके जीवन का मकसद क्या है उसके बारे में हमेशा जागरूक रहिए। क्यों जागरूक रहिए? क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं है, इफ यू डोंट नो वेयर यू हैव टू गो, रिमेंबर यू माइट रीच एनीवेयर इन द वर्ल्ड बट यू विल नॉट बी एबल टू रीच वेयर यू हैव टू गो. And why is that? Because you don't know where you have to go. So if I have to go to Mumbai, I have to constantly remember that I have to go to Mumbai. If I have to go to Calcutta, I got to constantly remember that I have to go to Calcutta. And same thing is also applicable in life, and that is be aware of your goal in life. आपके जीवन का गोल क्या है, वो गोल के बारे में हमेशा जागरूक रहिए. छोटा सा किस्सा बताता हूँ, और समय ख़त्म हो रहा है लेकिन हम 2-4 मिनट आगे थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे. एक बार क्या हुआ कि द्रोणाचार्य ने उनके जो 5 शिष्य थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल एंड सहदेव, तो छोटे छोटे बच्चे थे, वो उनको उस समय धनुर्विद्या सिखा रहे थे. तो एक दिन द्रोण ने वो 5 बच्चों को बुलाया और कहा, अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम मेरा तीर ले लो. युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तुम मेरा तीर ले लो. भीम से कहा, भीम तुम मेरा जो धनुष है वो ले लो. और उन्होंने फिर अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम एक कपड़ा ले लो. और उन्होंने फिर नकुल और सहदेव से कहा कि नकुल और सहदेव तुम अंदर जाके एक छोटा सा कपड़ा लेके आ जाओ. तो पांचों पांडवों ने जैसा गुरुदेव ने कहा उन्होंने वैसा फॉलो किया. तो युधिष्ठिर ने तीर उठा लिए, भीम ने धनुष उठा लिया, अर्जुन ने कपड़ा उठा लिया, और नकुल और सहदेव अंदर गए और वो एक सफरचंद सेब लेके आ गए. और फिर गुरुदेव ने कहा कि अच्छा एक काम करो, मेरे साथ चलो. तो द्रोण ने 5 बच्चों को अपने पीछे कहा आने के लिए. तो बच्चे उनके पीछे चलने लगे. द्रोण चले जा रहे हैं, बच्चे चले जा रहे हैं. बच्चे सोच रहे हैं, 4-5 पांडव छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 पांडव मन में सोच रहे हैं कि गुरुदेव क्या करना चाह रहे हैं आज. तो वो एक जंगल में पहुंचे. जंगल में गुरुदेव ने बच्चों को रुकाया और कहा कि ठहरो. और उन्होंने नकुल और सहदेव से कहा कि नकुल और सहदेव तुम जो सफरचंद लेके आए हो वो सामने वाली पहाड़ी के ऊपर जाके रख दो. तो नकुल और सहदेव गए और उन्होंने जाके वो पहाड़ी पर वो सफरचंद को रख दिया. फिर उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर मुझे मेरे तीर दे दो. युधिष्ठिर ने तीर दे दिए. तीर को एक साफ किया और करके गुरुदेव के हाथ में थमा दिया. उन्होंने भीम से कहा, भीम तुम मुझे मेरा धनुष दे दो.
तो भीम ने भी धनुष को साफ किया और गुरुदेव के हाथ में थमा दिया। और फिर उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम एक काम करो, तुम ये जो कपड़ा लेके आए हो, ये कपड़े को मेरी आंखों पर बांध दो। तो अर्जुन ने, जैसा कि गुरुदेव ने कहा, उनकी आंखों पर, गुरुदेव की आंखों पर वो कपड़े को बांध दिया। अब बच्चों को समझ गया, अब बच्चों को समझ गया कि गुरुदेव अब तक हमको धनुर्विद्या सिखा रहे थे कि किस तरह से आंखें खोल के निशाना लगाया जाता है। आज गुरुदेव हमको सिखाएंगे कि किस तरह से आंखें बंद करके निशाना लगाया जाता है। तो पांचों बच्चे अपनी सांस रोक के खड़े हो गए और गुरुदेव ने क्या किया, द्रोण ने क्या किया, द्रोण ने तीर को कमान पर रखा और जहां वो सेव रखा था उसके दिशा में उन्होंने निशाना साधा। द्रोण प्रत्यंचा को खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए। बच्चे मन में उत्साह से सोच रहे हैं कि अब गुरुदेव तीर को छोड़ेंगे, तीर सीधे जाके सेब में लगेगा, सेब में लगेगा। उसके बाद गुरुदेव हमको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आंखें बंद करके निशाना लगाया जाता है। द्रोण प्रत्यंचा को खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए और फिर उन्होंने प्रत्यंचा को छोड़ दिया। और जैसे उन्होंने तीर को छोड़ा, तीर सीधा एकदम वो सेब से 50 कदम दूर जाके गिरा। बच्चों को उम्मीद नहीं थी, बच्चे हड़बड़ा गए, झेप गए। युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा करें। शायद मैंने आपको वो तीर साफ सही तरह से करके नहीं दिया, इसकी वजह से आपको स्लिप हो गया और आपका निशाना चूक गया। भीम ने कहा, नहीं गुरुदेव, गलती मेरी है, मैंने आपको धनुष ठीक से साफ करके नहीं दिया था, इसकी वजह से प्रत्यंचा से आपकी उंगली स्लिप हो गई और आपका निशाना चूक गया। अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुदेव, गलती मेरी है, शायद वो जो पट्टी मैंने आपकी आंखों पर बहुत टाइट बांधी थी, जिसकी वजह से आपकी आंखों में दर्द हुआ और आपका निशाना चूक गया। नकुल सहदेव ने कहा, गुरुदेव नहीं, गलती हमारी है, हमने शायद वो जो सफरचंद लेके आए थे वो शायद सड़ा हुआ था और उसकी जो गंध है वो आपके नाक का पुटों तक पहुंची और उसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ और आप निशाना चूक गए। द्रोण ने पांचों बच्चों को लाइन से खड़ा किया और सबके कान के नीचे एक प्रेम से बजाया और बोले, बेवकूफ़ो, कुछ भी बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। एक चीज समझ लो जिंदगी में, तुम उस लक्ष्य को कभी भेद सकते नहीं जिस लक्ष्य को तुम देख सकते नहीं। You can never hit a target that you can never see. And that is the friends, be aware of your goal in life. अगर आपको मालूम नहीं कि आपका गोल क्या है तो आप उस गोल को कभी अचीव नहीं कर सकते। You can never hit a target that you cannot see. आप उस लक्ष्य को कभी भेद सकते नहीं जिस लक्ष्य को आप देख सकते नहीं। नंबर 3, be aware of your most precious assets, power, resources. Number 5, extensive reading for continuous updation of your subject knowledge. आप MBA में एडमिशन लेंगे, MBA में आएंगे, बल्कि उसके आने से पहले इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़िए, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़िए, DNA पढ़िए, जितनी भी बिजनेस और फाइनेंस के ऊपर मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, सबको पढ़िए रोजाना। जब तक आप MBA में आते नहीं हैं एडमिशन के लिए, रीड एज मच एज यू कैन, और एक बार यहाँ आ जाएंगे उसके बाद में भी read as much as you can. Number 5, be a good listener to gain knowledge. Number 6, be excellent in people skills. याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में to be good in dealing with people. आपका जिंदगी में पक्का कर लीजिए कि मेरा लाइफ में कभी किसी से कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, मेरा लाइफ में कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा। एंड रिमेंबर, जब आप ये पक्का कर लोगे कि मेरा किसी से झगड़ा नहीं होगा, मेरा किसी से कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली टॉप क्लास हो जाएंगी। सो रिमेंबर, बी एक्सीलेंट इन पीपल स्किल्स, कंटिन्यूसली कीप योर सेल्फ मेंटली फिट एंड फिजिकली फिट। कीप नंबर 8, कीप एक्सपेंडिंग नेटवर्क ऑफ यूजफुल कनेक्शन। सो जो भी लोग आपके यूजफुल हो सकते हैं उनका नेटवर्क बढ़ते रहिए। Number 9, keep abreast with all relevant development in and around your business. And number 10, always carry your roadmap, your blueprint for success in life. यानी कि जहाँ भी जाएं, जब भी जाएं,
अपना रोड मैप, अपना ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस ऑलवेज कैरी विद यू। आपका ब्लूप्रिंट सक्सेस का क्या है, आपका रोड मैप सक्सेस का क्या है, वही सब कुछ जो हमने पिछले 1 घंटे में डिस्कस किया है। ऑल ऑफ यू आर फॉर्चुनेट दैट ऑल दीज रिकॉर्डिंग्स, ऑल दीज सेशंस आर अवेलेबल ऑन द पोर्टल ऑफ पिंपरी चिंचवाड़ एजुकेशन ट्रस्ट का जो पुणे बिजनेस स्कूल है, उनके पोर्टल पर ये सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। तो आप जब भी चाहें तो आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग को डाउनलोड कर सकते हैं, और जब भी आपको अपने आप को रिफ़्रेश करने का मन करे तो आप अपने आप को रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विद दिस I come to the end of today's session. I would like to thank all of you for being part of this series, this master series of how to choose a career in finance, how to excel in finance. I would also like to thank Pimpri Chinchwad Education Trust, and they are really doing amazing job. And as a matter of fact, I would urge all of you to think and thank मिस्टर लेट श्री S.B. पाटिल साहब, जिन्होंने ये पुणे चिंचवाड़ एजुकेशन, पिंपरी चिंचवाड़ एजुकेशन जो ट्रस्ट है उसकी फाउंडेशन रखी। आज उस फाउंडेशन की वजह से आप सोचिए हजारों लाखों बच्चों को एजुकेशन मिल रही है। एंड दिस इज़ व्हाट व्हेन आई से वैल्यू क्रिएशन, दिस इज़ व्हाट इज़ वैल्यू क्रिएशन। सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक श्री S.B. पाटिल साहब। ऑफ कोर्स वो तो नहीं है, लेकिन हमारा उनके प्रति जो ग्रेटिट्यूड का भाव वो हमेशा बना रहेगा। आई वुड ऑलवेज लाइक टू थैंक पिंपरी चिंचवाड़ एजुकेशन ट्रस्ट, पुणे बिजनेस स्कूल, एंड एवरीबडी इन पुणे बिजनेस स्कूल and also in Pimpri Education Trust for giving me this opportunity. And also would like to thank Dr. Anish for coordinating and conducting these session. So thank you so much, friends. And in case if you have any question, I would be very happy to take them. Thank you so much. Yes, sir. As you rightly said,